important topic, at least from the electronics point of view. No electronics field is left behind without the IC 555. This is a timer IC, and every now and then, means in every project, this timer IC 555 is used. So we'll see its salient features, pin diagram, functional diagram inside that, the working, and then the applications of that one. So let us start. First, we'll see its some of the salient features associated with this one. From the title, at least it is clear that it is related with timing. So that we are sure about it. So let us see what are the salient features associated with this one. The very first thing, it is said to be highly stable device. Here the stability means depending on the timing or frequency for generating time delays. Many a times we want to delay certain process or we want to make certain process happen for certain time. So for that, this IC is used where we are concerned about timing. It is available in 8 pin, popularly 8 pin. Some are in metal can like a transistor. Some are in DIP type dual in package, which is normally we use, or even as 14 pin DIP. So depending on the application, but the most popular is, you can say, this 8 pin DIP. This we normally use. Okay. Then some of the important features related to this one are it can be operated, or the power supply required for this is right from plus 5 volt to plus 18 volt. So up to 18 volt it can be used, from 5 volt to 18 volt. It has a feature of adjustable duty cycle. Now yesterday only we have seen what is duty cycle. Can anybody tell me what is duty cycle? Timing from microsecond to hours. We can delay certain process right from microsecond to hours. Duty cycle? On time divided by total time. Yes. So it gives us the idea about the nature or shape of the waveform. For example, here I have drawn, you can say these square pulses on and off are equal. So we can say it is a 50% duty cycle. Here the on time is less. So as you said, duty cycle is T on to T. So T is fixed, only T on is changing. So if T on is less, means it is less than 50%. So roughly it is less than 50%. And if the T on is more than T off, we can say it is greater than 50%. So it gives us the idea about the shape or the nature of the waveform. Okay. So we can have the timing from microsecond to hours. Then high current output means how much? So we can say capacity to source or sink current, of 200 milliamp, means roughly 0.2 ampere. Now, can anybody tell me what is source or sink current, or I'll clear it within some time? Can anybody tell me? Also, output can drive TTL, means transistor logic. We have seen in digital electronics, TTL works on 5 volts. So in 5 volt, we require a logic of 5 volt only. So yes, 555 can also be worked on 5 volt and thereby get a square pulses or any pulses in the 0 to 5 volt range. Okay, so that will be useful for TTL IC. If in the counter you require a clock, you can generate it from 555. I am of the mind that everybody should have the breadboard and associated related ICs like 555 and all, and one should be able to perform that one. It has a temperature stability of the order of, what is this, 50 ppm. Yesterday only I told you. What does it mean, ppm? Kaun batayega? ppm, parts per million. Then is reliable. The best feature is easy to use and low cost, very cheap. The various applications, if we can see, as a oscillator, then pulse generator, multi-vibrator, means all the applications, astable, monostable, bistable. Then lot of project like burglar alarm, traffic light, all these, in these things 555 is used, control, etc. Now let us see the pin diagram of it. Okay, so here remember it is a 8 pin IC, and we'll see the function of each and every pin after a while. Here the pin number 1 is ground, pin 2 is trigger, 3 is output, 4 is reset, 5 is control voltage. You'll come to know why such names are given. Just when I'll explain the working of this one.
6 is threshold, 7 is discharge, and 8 is VCC. So we have such 8 pin IC. So we have seen pin 1 is ground. So the output voltage is taken with respect to ground. Any out voltage is taken with respect to this ground. Then there is pin 2 and 6. You should remember these are two, you can say, input where we input a voltage which is being compared by some reference voltages. Okay. Then output is taken from pin 3. 4 is for resetting, like a clear in flip-flop. 7 is discharge, as the name suggests, capacitor will discharge, may discharge through this path. And pin 5 is a control voltage. So we will see one by one the function of each and every one. Okay? Now we'll see this functional diagram of this one. So if I draw this directly, you will not come to know how it is working. So I will draw it. Okay? I will draw and try to explain you how it is going to work. Then you'll get the clear idea. As I do drawing, you'll come to know how the evolution is taking place. So that's why I will try to draw myself, although I may not draw that properly, but you'll come to know the process. Okay. So let us see. So we will see its functional diagram. Before that, I want your sum of the concept to be known. Just to revise the thing, if it is R1 and if it is certain voltage V and if it is R2, what will be the voltage at this point? Just try and tell me. What will be the voltage at this point? R1 upon R1 plus R1 upon R1 plus R2 into V. Is it clear? Everybody knows this one? पक्का ना? ओके, अगर ये आइडिया क्लियर है तो हमारे को बाकी की चीजें समझ में आएंगी. अब यहाँ मैं क्या करूंगा उसके तरीके से सोचना है. आई एम ट्राइंग, लेट्स से हियर 3 registers are there and this upper end is connected to some VCC, whereas this lower end is connected to some ground. All the 3 registers are of the value 5K, 5K, 5K. This may be the one of the reason that this IC is given a name 5555. All the registers are of equal value. Now, can anybody tell me, in such case, what will be the voltage at this point? Can anybody tell me what will be the voltage at this, both the point? Just try. What will be the voltage at this point? Means voltage across this lower register. That the things will be easier for you to understand. बताओ कितना होगा यहाँ पे वोल्टेज? 1/3 VCC. परफेक्ट. क्योंकि देखो आप क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि 5K डिवाइडेड बाय टोटल 5 into 3 15K, क्योंकि ये वोल्टेज इस 5K के अक्रॉस है. ठीक है. सो यहाँ पे रहेगा कितना बताया आपने? 1/3 VCC. सिमिलरली व्हाट विल द वोल्टेज एट दिस पॉइंट? 2/3 VCC. पक्का सबको लग रहा है कि ये 2/3 कैसे आया, पता चला क्या? जस्ट ट्राई करो. अभी रजिस्टर कितना है इसके, इस जगह पे 5K plus 5K 10K. तो दूसरा क्या होगा? 10K डिवाइडेड बाय 15K इंटू VCC. तो ये हो जाएगा 2/3 ऑफ VCC. तो ये एक रेफरेंस लेवल है एक्चुअली. क्यों? क्योंकि अब मैं यहाँ पे इसके साथ में ये यहाँ शॉर्ट कर दिया इंटरनल. देखो मैं जो जिस तरीके से बना रहा हूँ उसी तरीके से बनाना. ये इंटरनल इस 5K के पास में ये शॉर्ट कर दिया, ये शॉर्ट कर दिया, और इसको लगा के यहाँ पे मैं एक कंपैरेटर बना रहा हूँ जिसके कि इंटरनल वाले लगे हुए हैं. ये कनेक्टेड है और ये नीचे बाहर दूसरे टर्मिनल नीचे जा रहा है. ठीक है. 2 कंपैरेटर बनाना है. सपोज ये शुरू करना प्लस माइनस, अंदर के दोनों शॉर्टेड दिखाना, यानी कि इसका इन्वर्टिंग आ जाएगा तो इसका नॉन इन्वर्टिंग आएगा. इन दोनों के अब इसमें थोड़ा सा फर्क यह है कि इसका जो नॉन इन्वर्टिंग है वो बाहर निकाला हमने और उसको एक पिन बनाया. सिमिलरली इसका जो इन्वर्टिंग है उसको हमने बाहर निकाला और इनको नाम दे दिया है. क्या नाम दिए थे? ये पिन 6 है आपके आईसी का. क्या नाम? थ्रेशोल्ड. करेक्ट. और ये है आपका पिन 2 ट्रिगर. करेक्ट. ओके, यहां तक आ गए. इसमें से ये जो ऊपर वाला जो शॉर्ट है ना उसको भी बाहर पिन निकाला है और उसको नाम दे दिया है पिन 5, जो कि है कंट्रोल वोल्टेज. ओके, इतना याद रखना है कि
3 पिन तो इस कंपैरेटर में से निकला है। अंदर के दोनों शॉर्ट में से ऊपर वाला जो कि 2/3 वोल्टेज है कंट्रोल वोल्टेज करके, और बाहरी दोनों सिरे, बाहरी एक्सट्रीम एंड, तो ऊपर वाला 6 थ्रेशोल्ड कहलाता है, नीचे वाला ट्रिगर कहलाता है। मैं जैसे बोल रहा हूं ऊपर वाला नीचे वाला, इसी से आपको और भी फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि इन दोनों को कहाँ लगाया है। इन दोनों के आउटपुट एक आरएस फ्लिप फ्लॉप को लगाया है। ये एक फ्लॉप है जिसको कि हमने कनेक्ट कर दिया ऊपर वाले को आर पे और नीचे वाले को एस पे। ठीक है, ये है आर, ये है एस, इसका क्यू आउटपुट और इसका क्यू बार आउटपुट। ठीक है, और इसमें क्लियर का भी एक पिन है। क्लियर लो एक्टिव रहता है, लगे तो मैं यहाँ लो एक्टिव दिखा देता हूँ। अब यहाँ से कई लोग सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन लेकर रीसेट दिखाते हैं, तो मैंने जो फंक्शन, अलग अलग आपको फंक्शनल डायग्राम दिखेंगे, आप गूगल करोगे ना तो अलग अलग, लेकिन एक किसी को पकड़ना है जिससे कि आपको समझना है। और बाद में तो हम लोग जब इसका प्रोसेस इतना अपने को याद हो जाता है कि हमको वो इंटरनल डायग्राम याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, 555 के आईसी से ही हमको सब समझ में आ जाता है। बट बिफोर दैट कि इंटरनली कैसे काम करता है ये हमको मालूम रहने के लिए हम लोग ये पूरा फंक्शनल डायग्राम बना रहे हैं। ये फंक्शनल है, एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल बहुत सारे ट्रांजिस्टर रहते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर वाला जो है ना, ये जो क्लियर वाला है, एक इसके जो इमिटर है, इसको एक इंटरनली वी रेफरेंस लगा हुआ है, इंटरनली यानी आईसी के अंदर। अभी मैं आईसी कहाँ तक है ये बताने के लिए जानबूझ के यहाँ क्या करता हूँ, इस ग्रीन से मैं यहाँ से इसका जो बेस है ये बाहर निकला हुआ है, जो कि पिन 4 कहलाता है। क्या है? पिन 4 रिसेट। ओके, और ये जो आईसी है यहाँ पे खत्म हो गया, यानी ये पिन बाहर है। ठीक है, और इसका जो क्यू बार है, यहां से एक इन्वर्टर कम बफर, मतलब बफर इन्वर्टर बोलते हैं हम इसको। एक्चुअली बफरिंग का काम कर रहा है, साथ में इसको इन्वर्ट कर रहा है। मतलब क्यू बार का अगर इन्वर्ट किए तो वापस क्यू आ जाएगा कि नहीं, तो कई जगह आउटपुट क्यू से दिखाते हैं, लेकिन हम लोग जो मैंने रेफर किया है उसके हिसाब से इसको बोलते हैं बफर इन्वर्टर। मतलब ये करंट कैपेसिटी भी बढ़ाता है और क्यू बार का कॉम्प्लीमेंट होकर क्यू ही वापस मिल जाता है, मतलब क्यू आउटपुट मिलता है। इसको बोलेंगे हम पिन नंबर 3 आउटपुट। यहां तक के ठीक है। अब यहां से याद रखना थोड़ा सा कि ये जो क्यू बार निकला है ना, यही से हमने एक इंटरनली 100 ओम का रजिस्टर है, इसमें दिखाओ ना दिखाओ ये सिर्फ इन्हें एक्सप्लेनेशन के हिसाब से है। ये क्या, एक ट्रांजिस्टर है जिसका कि इमिटर ग्राउंडेड रहता है, मतलब हम लोग पिन नंबर 1 कहलाएंगे इसको। अब जैसे ये जो निकला था ना अपना आईसी, ये आईसी का यहाँ तक के बॉर्डर है और ये इनसाइड आईसी हो गई, और हमने यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर दिखाया है, और ये जो ट्रांजिस्टर का कलेक्टर है ये कहलाता है पिन 7 डिस्चार्ज। आगे पूरे पिन हो गए अपने कि नहीं, पहले से देखते हैं। इसको नाम दे दो Q1, एक पिन रह गया, पिन नंबर 1, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन ये है पिन 1 ग्राउंड। अब देखते हैं, देखो इस ट्रांजिस्टर का इमीटर पिन 1 ग्राउंड, ये ग्राउंड कनेक्टेड ही है इससे। पिन नंबर 2 और 5 और 6 ये कंपैरेटर के हैं। रिसेट पिन इस क्लियर को लगा हुआ है। ये प्लस वीसीसी पिन 8, ऑल पिन्स आर क्लियर। अब जरा इसके वर्किंग की तरफ हम ध्यान देंगे, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। ठीक है, इज इट विजिबल? सब दिख रहा है क्या आपको? Yes, sir. हाँ, yes. Now if you see, now I want to know, or we want to correlate the working of this one. So here 3 5K registers are connected internally inside a 555 IC in a series voltage divider network, which sets the reference voltage of 1/3 of VCC and 2/3 of VCC. So if you observe this comparator, both the comparators, you can see the 2/3 VCC at the inverting terminal of C1, 1/3 VCC at the non-inverting terminal of C2, okay, which is connected to the RS flip-flop. Now, as per the requirement of supply voltage, we'll connect the plus VCC. It may be 5 volt, it may be up to 18 volt. So thereby it will set the two different references, 1/3 VCC and
2/3 VCC. Here the transistor T2, Q2, this one, it acts as a, you can say, buffer which isolate the reset terminal with the flip-flop. It isolate the reset terminal with the flip-flop. And it is run by, or it is actuated by the internal reference voltage. Okay. Now, if we see in the stable state, let's say the output is low. When the output, suppose in the stable state, the output is low. When the output is low, what will be Q bar? Hello? When the output is low, what will be Q bar? If the output is low, what will be the Q bar? 1. Nobody? जब अगर आउटपुट यानी क्या है, क्यूब समझ लो ना, ये क्यू बार का इन्वर्टेड होके यहाँ क्यू ही आ गया ना, तो अगर आउटपुट लो है तो क्यू बार कितना रहेगा? हाई. When the Q bar is high, this NPN transistor will be turned on or not? कैसे पढ़ा है NPN ट्रांजिस्टर? अगर उसके बेस में हाई मिल रहा है तो this transistor will be on. As this transistor will be on, this collector and emitter will be shorted. Thereby you can say, if there is at all a capacitor, this capacitor will be fully discharged through this ground path. ये नॉर्मल वर्किंग बता रहा हूं आपको. Have you understood this one? जब आउटपुट अगर लो हुआ तो क्यू बार हाई होता है, क्यू बार हाई होता है तो ये ट्रांजिस्टर ऑन होता है, ट्रांजिस्टर ऑन यानी कलेक्टर और इमिटर शॉर्ट होते हैं. देयर बाई इन द पिन 7 इफ देयर इज अ कैपेसिटर एट ऑल इट विल बी डिस्चार्ज. नाउ लेट अस सी वन बाय वन फंक्शन ऑफ ईच पिन. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ पिन 1. व्हाट इज पिन 1? Ground. So all the voltages are measured with respect to this point. So there is nothing much to explain. बराबर है ना? Important है pin 2 और ये 1. Trigger. Now if you observe a trigger where it is connected to the lower comparator. दिख रहा है? जिसके की नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में 1/3 VCC है. अगर ट्रिगर को कुछ भी वोल्टेज नहीं है तो ये हाई रहेगा कि नहीं? यस सर. देखो नॉर्मली इसको हाई वोल्टेज कनेक्टेड रहता है, यानी समझ लो VCC करीब करीब, तो इन्वर्टिंग का वोल्टेज ज्यादा रहेगा नॉन इन्वर्टिंग की कंपैरिजन में, तो आउटपुट क्या आएगा? लो आएगा. और लो एस को दिया है मतलब सेट नहीं होगा. ठीक है, अगर मुझे सेट करना है इस फ्लिप फ्लॉप को तो मुझे क्या वोल्टेज देना पड़ेगा ट्रिगर पॉइंट पे? बताओ. मुझे इस फ्लिप फ्लॉप को सेट करना है, मतलब आउटपुट हाई करना है. देखो ये एस को 1 मिला तो सेट हो जाएगा, मतलब आउटपुट 1 होगा, क्यू बार लो होगा, लो होके वापस से इन्वर्टेड, यानी यहाँ पे यही रेफर करना कि ये क्यू यहाँ आ रहा है, ऐसे मान के चलना. ठीक है, अपनी समझने के हिसाब से ये क्यू बार सिर्फ इस ट्रांजिस्टर को समझने के काम का है, अदरवाइज जो आउटपुट आएगा वो इसके हिसाब से. तो कैसे आउटपुट हाई कर सकते हैं हम? ट्रिगर पिन को कितना वोल्टेज कनेक्ट करेंगे तब हाई होगा? जब हम इसको निगेटिव या लो पल्स देंगे, which should be, ये trigger voltage should be less than 1/3 of VCC. Are you agree with me? अगर इसका वोल्टेज ये 1/3 से कम होगा तो यहाँ आउटपुट हाई हो जाएगा, क्योंकि नॉन इन्वर्टिंग का 1/3 VCC will be more than this trigger voltage. ये ट्रिगर वोल्टेज से कब बड़ा होगा? ये देखो नॉर्मली इसको VCC लगा रहता है, मैंने इसको निगेटिव पल्स दिया, मतलब जीरो, ये तो जीरो दे दिया, या ऐसा वोल्टेज जो 1/3 से कम है. जैसे ही 1/3 से कम होता है तो नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज ज्यादा हो जाता है, फिर ये हाई हो जाएगा, ये हाई होगा तो इसको सेट कर देगा. इज इट अंडरस्टूड? समझ में आया क्या? कोई समझने में दिक्कत है क्या? मैं रिपीट करूं, समझने में दिक्कत है? किसी को भी दिक्कत हो तो फिर से पूछो. नॉर्मली ये ट्रिगर पिन को हाई वोल्टेज रहता है, हाई यानी VCC, और VCC रहेगा. ठीक है, तो निगेटिव का वोल्टेज ज्यादा रहेगा, यानी कि लो आउटपुट रहेगा. लो आउटपुट रहेगा तो इसको कुछ नहीं करेगा, सेट नहीं कर पाएगा. लेकिन अगर मुझे सेट करना है, आउटपुट हाई करना है, तो क्या देना पड़ेगा? इसका वोल्टेज 1/3 से कम करना पड़ेगा. सो ट्रिगर वोल्टेज शुड बी, दिस विल बी द ट्रिगर वोल्टेज व्हिच शुड बी लेस देन 1/3 ऑफ VCC. अब इतना डिटेल में मत बताया, लेकिन अब याद क्या रखना ट्रिगर वोल्टेज में, इफ ट्रिगर वोल्टेज इज लेस देन 1/3 ऑफ VCC आउटपुट विल बिकम हाई. बस इतना शॉर्ट में याद रखना. ये समझ में आया क्या आपको? यस सर. बस, यानी इसको लगे तो कई बार क्या बोलते हैं, निगेटिव गोइंग पल्स या निगेटिव एज ट्रिगर्ड या निगेटिव गोइंग पल्स. क्यों निगेटिव बोल रहे हैं? देखो इस टाइप के पल्स को पॉजिटिव पल्स बोलते हैं, इस टाइप की पल्स को निगेटिव बोलते हैं. निगेटिव यानी यह ऑलरेडी हाई है और इसको लो दिया जा रहा है, यानी मोमेंटरीली अगर पिन 2 को मैं ग्राउंड कर दूं तो जीरो वोल्टेज,
जीरो वोल्टेज में ये ट्रिगर मिल जाएगा इसको। नाम भी इसका नाम ही है ट्रिगर, ट्रिगर मिलता है उसको, ट्रिगर मिला है सेट कर देगा, ठीक है। नाउ पिन 3, व्हाट इज पिन 3? पिन 3 इज Output. आउटपुट, पिन 3 इज आउटपुट। So we get a output from this one. Now there are two ways to connect the output. How? Between pin 3 and pin 1. अगर लोड मैंने पिन 3 और पिन 1 में कनेक्ट किया, मतलब कैसे कि ये 555 है, इसका 3 आउटपुट है और ये लोड इस तरीके से कनेक्ट किया मैंने, ये समझ लो पिन 1 और ग्राउंड। एक वे ऐसा भी होता है, ये पिन 3 में कनेक्ट किया और यहाँ VCC है 8 पिन और ये लोड यहाँ कनेक्ट किया, दो वेज है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये अगर मेरे को बताओ, ये ग्राउंड यानी जीरो वोल्टेज ना, ग्राउंड यानी जीरो वोल्टेज। अगर इसका हाई होगा तो करंट फ्लो होगा, बराबर है ना। इसको बोलते हैं आई सोर्स, सोर्स करंट, यानी ये 555 में से बाहर जा रहा है। और अब बताओ इसमें से करंट कब फ्लो होगा, इस लोड में से? आउटपुट हाई रहेगा तब कि आउटपुट लो रहेगा तब? अगर यहाँ हाई हो गया तो देयर विल बी इक्विपोटेंशियल, सो नो करंट फ्लोज। अगर यहाँ लो हुआ तो करंट फ्लो होगा क्या? अपर टर्मिनल इज एट हाई, ये VCC को कनेक्टेड है, और ये लोअर जो है पिन 3, ये पल्सेस अगर सपोज स्क्वायर वेव ये आउटपुट कर रहा है तो हाई लो हो रहा है, तो लो के वक्त करंट फ्लो होगा कि हाई के वक्त करंट फ्लो होगा? लो के वक्त। अब देखो लेकिन करंट किस तरीके से, करंट इज इनसाइड द 555, इसलिए इसको आई सिंक, सिंक करंट बोलते हैं। कैसे याद रखना, सोर्स यानी ऊर्जा जो बाहर देता है, बाहर जाता है, इस 3 में से बाहर जा रहा है, बराबर है। सिंक यानी घर का सिंक याद करना, जिसमें कि आप बर्तन भांडे डालते हैं तो उसके इसमें एंटर करता है, इसको सिंक, पिन 555 के अंदर जा रहा है तो इट इज सिंक करंट। सोर्स इज आउटगोइंग, सिंक इज इनकमिंग। तो अब समझ में आया सोर्स और सिंक करंट जब मैंने बोला था आपको? यस सर। तो ये पहले वाले को जो केस है ना, इसको नॉर्मली ऑफ लोड कहते हैं। ऑफ लोड क्यों नॉर्मली ऑफ लोड बोलते हैं? नॉर्मली आउटपुट लो रहता है, जब ये लो आउटपुट रहेगा तो यहां से कुछ भी करंट नहीं फ्लो होगा, और इसको नॉर्मली ऑन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बताओ जल्दी? ये जानबूझ के ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बोल रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है लेकिन ऐसी चीजें भी होती है। ये अगर नॉर्मल में क्या रहता है, लो रहता है, नॉर्मल में लो रहेगा तो यहाँ अगर एलईडी है तो ग्लो होंगी कि नहीं होंगी? होंगी, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है। तो नॉर्मली ये ऑन रहेगा और ये नॉर्मली ऑफ रहेगा। Yes, sir. So and the maximum current or value, current value of sink or source current is 200 milliampere. अपन ने जब भी देखा था 200 milliamps mean 0.2 ampere. Okay. So this is about pin 3. Now what is pin 4? Reset pin. Reset pin. इसका काम है रिसेट करना, क्लियर काम करना। बीच में आउटपुट हाई है या लो है या कुछ भी है, लेकिन एट अ टाइम सपोज मोमेंटरीली आपको रिसेट करना है। पेट्रोल 1.5 लीटर भरा है या 2 लीटर भरा है, लेकिन आपको दूसरे इसको फिर से भरने के लिए आप रिसेट करते हैं, एक खटका वो दबाता है कि नहीं, इसलिए उसको रिसेट बोलते हैं। तो यहाँ भी वैसे ही रिसेट होता है। ये रिसेट कैसा है, लो एक्टिव है। अगर इसको लो वोल्टेज दिया तो ये 0 हो जाएगा आउटपुट, अदरवाइज ये अपना नॉर्मल ऑपरेशन करेगा, ठीक है। सो इसका वर्किंग ऐसा है कि इफ वोल्टेज लेस देन 0.4 वोल्ट, स्पेसिफिक बता रहा हूं, जबकि 0 वोल्ट बोल दिया तो भी चलता है, लेस देन 0.4 वोल्ट अगर हमने अप्लाई करेंगे तो ये रिसेट हो जाएगा, मतलब आउटपुट विल बी लो। ओके, इतना समझ में आया तो भी काफी है, ठीक है। एंड और ये इट विल ओवरराइड द इफेक्ट ऑफ दिस वन, मतलब अगर आपका हाई हो रहा है या लो हो रहा है किसी कारण, सर्किट के कारण, इट विल नॉट वेट फॉर दैट, it will be the master over that one. If you connect a low voltage at the reset, it will be resetted irrespective of the output at that moment. Okay. And when it is not used, when it is not in use, not used, और इसका कोई काम नहीं है, तो it is normally connected to VCC. पढ़ के आया, बढ़िया VCC, very nice, but one should be ready. Okay. So in the normal operation, तो आप लोग जितने भी सर्किट देखते होंगे ना, उसमें मैक्सिमम ये पिन 8 और 4 ऐसे कनेक्टेड मिलेंगे, ये दोनों कनेक्ट हुए हैं और इसको VCC रहेगा, तो नॉर्मल ऑपरेशन में। लेकिन कोई पिन 4 का मुझे एप्लीकेशन बताएंगा तो मैं बहुत खुश हूंगा, और नहीं तो एट द एंड ऑफ 1 और 2 लेक्चर मेरे को पूछना, तो मैं आपको बहुत अच्छा एप्लीकेशन बताऊंगा पिन 4 का। सो व्हाई वी आर कनेक्टिंग टू VCC? टू अवॉइड द फॉल्स ट्रिगरिंग। अगर गलती से सपोज ओपन रख दिया और उसको गलती से लो वोल्टेज मिल गया या टच हो गया कहीं, तो एक फॉल्स ट्रिगर यानी उसको रिसेट हो जाएगा कि नहीं, टू अवॉइड दी पॉसिबिलिटी ऑफ फॉल्स ट्रिगरिंग। ऐसे बहुत बार होता है। अब आपको मैं प्रैक्टिकल करने के लिए समय नहीं है, नहीं तो पिन 2 को अगर ओपन रखे ना या वायर रखे और आपने बस वायर हिलाया भी तो ट्रिगर मिल जाता है।
तो उसके लिए क्या करना पड़ता है वो भी बताऊंगा मैं आपको कि वो माल फंक्शन न करने के लिए। बट पहले अपने इसके तरफ कॉन्सेंट्रेट करते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट पिन? पिन 4 का एप्लीकेशन समझ में आ गया? पिन 4 का वर्किंग किसी को डाउट है? नो सर। कंट्रोल वोल्टेज पिन 5। कंट्रोल वोल्टेज का एप्लीकेशन क्या होगा? अगर आप ध्यान से देखो इसको, कंट्रोल वोल्टेज फिक्स है वैसे, देख रहे हैं आप? दिख रहा है आपको? कहाँ है कंट्रोल वोल्टेज? कहाँ दिख रहा है आपको? बताओ। टू पिन थर्ड 5, ये वाला 2/3 वीसीसी। ये 2/3 वीसीसी फिक्स है कि नहीं वोल्टेज? है ना? यस सर। क्यों? अब इसके कारण 1/3 भी फिक्स है। अगर ये मेरे को रेफरेंस वोल्टेजेस अगर मेरे को चेंज करने हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ एक एक्सटर्नल पॉट लगा के यहाँ दूसरा वोल्टेज लगाता हूँ, जिसके कारण वो वोल्टेज इसके ऊपर राइट मतलब ओवरराइड करेगा, यानी इसमें ऐड होगा। सपोज मैं कोई एक्सटर्नल वोल्टेज यहाँ ऐड कर दिया, जिसके कारण ये कोई नया वोल्टेज बन गया V, बराबर है, विच इज द एडिशन ऑफ दिस टू वोल्टेज। तो अब ये 1/3 वाला VCC चेंज होगा कि नहीं होगा? बताओ। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। देखो मैं बताता हूँ आपको डायग्रामेटिकली। यहाँ 1/3 मिल रहा था, यहाँ 2/3 मिल रहा था, ठीक है ना? अब मैंने यहाँ पे ये पॉट लगा दिया और यहाँ एक्सटर्नल यहाँ VCC दिया हुआ है, तो ये 2/3 और 1/3 ऑफ VCC हुआ। यहाँ पे कुछ मैंने बैटरी कनेक्ट कर दिया, इसके कारण ये इसमें वोल्टेज ऐड हो गया। ये वोल्टेज ऐड होके सपोज कोई नया वोल्टेज बन गया V, जो कि कोई भी वोल्टेज है। अब ये नया वोल्टेज होने से थ्रेशोल्ड का वोल्टेज चेंज हो गया, अभी कोई नया V बन गया, साथ में 1/3 वाला VCC भी चेंज होगा। ये कितना हो जाएगा? V/2, क्योंकि देखो दो रजिस्टर इक्वल है तो इसमें हाफ हो जाएगा, इसका 2/3 का हाफ 1/3 था, V का हाफ V/2 होगा, बराबर। इट मीन्स आई एम एबल टू चेंज द टू डिफरेंट थ्रेशोल्ड्स, दैट इज लोअर थ्रेशोल्ड एंड अपर थ्रेशोल्ड, या जिसको बोलेंगे ट्रिगर वोल्टेज एंड थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ये इसका यूज VCO में करते हैं, वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर। हम लोग देखेंगे कि ये कंट्रोल वोल्टेज जब चेंज होता है तो हम उस ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, किसके कारण? इस वोल्टेज के कारण। इसलिए इट विल एक्ट एज अ वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर, मतलब ऑसिलेशंस आर चेंजिंग ड्यू टू वोल्टेज, तो दैट्स व्हाई द नेम वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेशन। So presently you just remember, presently what should you remember? If at the control voltage, if you are connecting any external voltage, it will override onto 2/3 of VCC, thereby it will change the voltage and these two different thresholds will change to a new voltage. So we are able to vary the control voltage. When it is not in use, जब इसका कोई ऐसा use नहीं करना है, normally it is bypass। ये याद रखना, ये हर बार तुमको सर्किट में दिखेगा, इट इज बाईपास्ड कैपेसिटर विद ग्राउंड। बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट। कितने कैपेसिटी किस वैल्यू का? 0.01 माइक्रोफैराड। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ये याद रखना, हमेशा सर्किट में इतनी चीजें कॉमन मिलेंगी। 8/4 शॉर्टेड, 0.01 माइक्रोफैराड से शॉर्ट यानी बाईपास कर दो। व्हाई डू वी डू इट? टू प्रिवेंट एनी नॉइज डिस्टर्बेंस, एनी नॉइज, क्योंकि देखो थोड़ा भी अगर नॉइज में ऐड हो गया तो वो कंट्रोल वोल्टेज चेंज हुआ कि नहीं? और रिपल, रिपल काय में से आता है? सप्लाई में से, रिपल फ्रॉम दी सप्लाई। आई होप यू आर एबल टू गेट इट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। अब रह गया पिन 6 और पिन 7 जो इंपॉर्टेंट है। पिन 6 क्या है? थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड। पिन 2 और पिन 6 ये सौतेले भाई है, मतलब दो रेफरेंस अलग अलग है। पिन 2 में हमने देखा था इफ वोल्टेज लेस देन 1/3 VCC देते हैं तो वो आउटपुट हाई होके सेट करता है। यहां वोल्टेज ग्रेटर देन ऊपर वाला रेफरेंस कितना है? मोर देन 2/3 VCC। परफेक्ट। इफ द वोल्टेज ग्रेटर देन 2/3 ऑफ VCC करेंगे तो अपर वाला कंपेरेटर हाई होगा, और अपर वाला कंपेरेटर किसको लगा हुआ है? रिसेट को लगा है ना? RS फ्लिप फ्लॉप के रिसेट को लगा है। तो इस केस में आपका अगर 2/3 से अबाव देते हैं तो ये पॉजिटिव का वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा नॉन इन्वर्टिंग का, इसलिए रिसेट करेगा, इसलिए आउटपुट क्या हो जाएगा? आउटपुट विल बी लो। सो इन ऑर्डर टू मेक द आउटपुट लो you have to apply, or the voltage at pin 6 greater 2/3 of VCC will change the output to low। ठीक है? So now what should you remember? दो चीजें, पिन 2 ट्रिगर अगर लेस देन 1/3 VCC दिया तो वो हाई कर देता है आउटपुट को। पिन 6 थ्रेशोल्ड अगर वोल्टेज ग्रेटर देन 2/3 VCC कर दिया तो वो लो कर देता है। इतना याद रखोगे क्या? When voltage greater than 2/3 of VCC अप्लाई करते हैं
तो अपर कंपैरेटर C1 हाई हो जाता है, जो रीसेट कर देता है, इससे आउटपुट क्या हो जाता है, लो हो जाता है। इज इट क्लियर? यस सर। पिन 7 और भी ये चीजें बाद में पिन के साथ में अपने क्लियर होंगे या वर्किंग के साथ में क्लियर होंगे जब अपन कोई सर्किट देंगे। नाउ पिन 7, एज आई सेड, पिन 7 ये एक इट इज द कलेक्टर ऑफ ट्रांजिस्टर, इंटरनल ट्रांजिस्टर। आपके ध्यान में आया होगा वो डायग्राम में, ये पिन 7 रहता है, इस तरीके से है वो, ये ग्राउंडेड है और ये कनेक्टेड है क्यू बार को। तो ये नॉर्मली जो है ये एक कैपेसिटर वगैरह को कनेक्टेड रहता है नॉर्मली। तो ये कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग पाथ देता है, लेकिन ये डिस्चार्ज होने के लिए क्या लगेगा, ये ट्रांजिस्टर ऑन होना चाहिए। ये ट्रांजिस्टर ऑन कब होगा, जब क्यू बार हाई होगा। जब क्यू बार हाई होगा, दिस ट्रांजिस्टर विल बी ऑन, thereby this collector and emitter will be shorted and this capacitor will get a path to discharge. And if the Q bar is low, transistor will be open circuit or off. So this capacitor will get a path to charge through certain another circuitry. ये हम देखेंगे। Is it clear now? Pin Yes, 7 sir. का pin 7 discharge, as the name suggests, it will give a path for the capacitor to discharge, provided Q bar is high or output is low. Output low, Q low means Q bar high. Q bar high means transistor on. Transistor on means collector and emitter shorted. Thereby, the capacitor will get a path to charge. Now pin 8 plus VCC or power supply. So whatever supply voltage you are required, that you will connect to this one. So plus 5 volt to plus 18 volt it can work on. You can connect at this pin 8. I hope these things are clear. यही अलग अलग तरीके से रहते हैं, जैसे अभी इसमें आप देखेंगे ये फंक्शनल डायग्राम किस तरीके से दिखेगा, तो ये इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, दिस इज अपर कंपैरेटर, दिस इज लोअर कंपैरेटर। ऑल दी 5K are connected internally, so it will set a 2/3 of VCC reference. Here it will be 1/3 of VCC. Okay, and देखो कई डायरेक्ट रिसेट इस तरीके से लो को दिखा देते हैं कि ये है, ठीक है। एंड क्यू बार से ये हमने डिस्चार्ज का पिन 7 दिखा है, और ये बफर आउटपुट से इन्वर्टर से ये आउटपुट आ गया। लाइक दिस द वर्किंग इज, एंड व्हाट आई सेड सिंपल याद रखना है, पिन 2 और पिन 6 ट्रिगर थ्रेशोल्ड। पिन 2 नीचे है तो याद रखना लेस देन 1/3 VCC, अगर किया तो सेट करता है, मतलब आउटपुट हाई होता है। ठीक है, ये पिन 6 ऊपर है तो ग्रेटर देन अपर कंपैरेटर का थ्रेशोल्ड 2/3 VCC, तो ये रीसेट करता है, यानी कि आउटपुट लो होता है, याद रखना है। पिन 4 रीसेट करने काम आता है, ये लो एक्टिव है, यानी कि वोल्टेज लेस देन 0.4 वोल्ट यानी 0 ही वोल्ट ऐसे मान के चलो, तब ये रीसेट करता है। नॉर्मली इट इज कनेक्टेड टू VCC. Pin 5 control voltage. If external supply voltage is connected, we can change the threshold and trigger voltage references. Okay, just by connecting externally. When it is not in use, it is bypassed through a 0.01 microfarad. Pin 3 यहाँ से आउटपुट लेते हैं, दो वे है, नॉर्मली ऑन लोड, नॉर्मली ऑफ लोड। ये नॉर्मली ऑन नॉर्मली ऑफ क्या होता है, ये जब मैं एप्लीकेशन बताऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। Pin 7 discharge. If the output is low, Q bar is high. When Q bar is high, internal transistor will be on. When internal transistor is on, pin 7 will discharge, or the capacitor, if at all connected, will get a path to discharge to the ground. Okay, so I hope it is clear. कुछ समझ में ना आया ऐसे कोई चीज है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Now we will see the application of this. So we'll start with Astable multivibrator. अभी हम देखेंगे 555 टाइमर एज Astable multivibrator. तो आपने जब Astable multivibrator ऑप एम्प वगैरह से देखा, उससे भी ये इजी जाता है और काफी हद तक के ये आपको रिफाइंड काम करवाता है, आपको रिफाइंड चीजें मिलेंगी इसमें। ठीक है, सो सिंपल सर्किटरी है। व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग इसके पिन 8 और 4, पहले आईसी का नाम लिख देता हूँ, या 555, और जानबूझ के नॉच नहीं बनाया क्योंकि पिन मैं कहीं भी दिखा सकता हूँ मेरे सहूलियत के हिसाब से। सो दिस इज व्हाट पिन 8 and 4 आई हैव शॉर्टेड, व्हिच इज कनेक्टेड टू Plus VCC. परफेक्ट। अब याद रखना, ऊपर से शुरू करना 7 और एक रजिस्टर कनेक्ट कर देना 7 में,
और इसके बाद एक और रजिस्टर लगाना और उसके जो दो टर्मिनल है वो दो पिनों को दे देना, 6 और 2 शॉर्टेड कॉमन, यानी ट्रिगर और थ्रेशोल्ड को दे दिया हमने। और इसके बाद एक कैपेसिटर है, यस, विच इज ग्राउंडेड। सो दिस ग्राउंडेड पिन विल बी पिन 1। ये पिन 1 हमने ग्राउंड करके रखा है। यहाँ भी दिखा सकते हैं, एक ही बात है, यहाँ पे ग्राउंड दिखा दिया क्या और वहां पे दिखा दिया क्या, या दोनों शॉर्ट कर दिया। इसको नाम दे दिया मैंने RA, RB और C। ठीक है, अब रह गया क्या, मेरे पास रह गया पिन 5। यस, इसको हम क्या करते हैं नॉर्मली जब इसका यूज नहीं है तो ग्राउंडेड थ्रू कैपेसिटर। यस, तो उसको अच्छा वर्ड है बाईपास थ्रू कैपेसिटर, 0.01 माइक्रोफैराड। और पिन 3 से हम आउटपुट देखेंगे कैसे मिलता है। तो हमारा ये दावा है कि ये जो आउटपुट है ये स्क्वायर पल्स या इस टाइप के पल्सेस मिलेंगे हमको, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ RA एंड RC। ओके, अब चलो विल स्टार्ट विद द वर्किंग, कैसे वर्क करता है ये। सो आर यू रेडी टू पे अटेंशन? थोड़ा सा 5 मिनट ज्यादा लग सकता है। हेलो, यस सर, ओके ओके ओके। सो अब हमको मालूम है एस्टेबल में हम लोग इनपुट देते नहीं, एंड इट इज अ फ्री रनिंग मल्टीवाइब्रेटर, मतलब वो हाई लो होते जाएगा, तो हमको कुछ तो एज्यूम करना ही पड़ेगा। सो लेट अस एज्यूम द आउटपुट इज हाई फॉर द मोमेंट। ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आउटपुट इस समय हाई है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर को देखो, व्हेन द आउटपुट इज हाई, व्हेन द आउटपुट इज हाई, आउटपुट मींस as good as Q. Okay, so when the output is high, what will be Q bar? 0. Q bar will be 0 or low. When Q bar is low, internal transistor Q1 will not be turned on, it will remain off. ठीक है, हाँ, ये अगर लो है तो ये ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा। इसका मतलब क्या है कि कलेक्टर और इमिटर शॉर्टेड नहीं है, सो पिन 7 डिस्चार्ज नहीं होगा। सो नाउ दिस कैपेसिटर विल गेट अ पाथ टू चार्ज through this path RA, RB to capacitor. It will charge. This capacitor will charge through a path RA, RB and C. Now the capacitor voltage is increasing. Now the capacitor voltage is increasing. That means the voltage at pin 6 and pin 2 are increasing. So let us say it is starting from a 0 voltage and now the voltage is increasing. Let's say the voltage at pin 6 goes more than 2/3 of VCC. Just pay an attention. If the voltage at this pin goes above 1/3 of VCC, there is no problem. वो कब होता है? Less than 1/3 हुआ तो अभी तो आउटपुट हाई है। When the output is high, Q bar is low, transistor off, so discharge is open. Discharge pin is open. As good as this will be open. Okay, so this capacitor will get a path to charge through this path RA, RB, C. The capacitor voltage is increasing. As soon as the voltage across capacitor reaches or goes more than 2/3 of VCC, upper comparator will become high. That will reset the flip-flop C1 high. That will reset the flip-flop and the output will be low. Is it clear? Output will be low. Is it clear? फिर से बोलो, समझ में आया नहीं है? Sir, repeat. Yes. अब ध्यान देना जरा। We are assuming the output is high. When the output is high, Q bar will be low. When Q bar is low, the internal transistor is off. So when internal transistor is off, so you can assume this pin 7 is as good as open circuit. Now, as this path is open circuit, now this capacitor got a path to charge from supply voltage plus VCC. So from 0, it will start charging through a path of RA, RB and C. Now the capacitor voltage is increasing. I can, if you say, I'll draw the diagram. ये हमने आउटपुट पहले हाई माना और ये कैपेसिटर का वोल्टेज जो है ये इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही ये 2/3 ऑफ VCC के अबाव जाता है तो क्या होता है, पिन 6 पे वोल्टेज ग्रेटर देन 2/3 ऑफ VCC गया तो अपर कंपैरेटर C1 will be high, which is connected to reset. It will reset the flip-flop. It means output will be low. So this output will turn to low at this point, 2/3 of VCC. When output is low, what will be Q bar? What will be Q bar? 1. So Q bar will be 1. Now transistor will be on or off? जब उसको हाई मिल गया बेस पे तो ऑन हो जाएगा। ट्रांजिस्टर ऑन हो गया मतलब क्या हो गया
ये जो पिन 7 है इट इज कनेक्टेड टू ग्राउंड, ये पिन ग्राउंड को, क्योंकि ये कलेक्टर और ये इमिटर शॉर्ट हो गया स्विच ऑन होने से। अब क्या होगा कि अगर ये रजिस्टर है आर यहां से इसको शॉर्ट हो गया है तो ये कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने का पाथ मिल गया। सो नाउ द कैपेसिटर विल डिस्चार्ज थ्रू दिस पाथ। नाउ द कैपेसिटर वोल्टेज इज डिक्रीजिंग फ्रॉम 2/3 ऑफ वीसीसी टुवर्ड्स 0 वोल्टेज। जा रहा है, ये जा रहा है, लेकिन जैसे ही ये 1/3 वीसीसी के नीचे जाता है तो पिन 2 का वोल्टेज इफ इट गोज बिलो 1/3 of VCC, what happens? C2 will be high. Comparator C2 will be high, which is connected to set. So it will turn or make the output high. So यहाँ पे 1/3 जब VCC होगा तब आउटपुट हाई हो जाएगा। अब आउटपुट हाई है तो क्या होगा? Q बार विल बी लो। Q बार लो है तो क्या होगा? इंटरनल ट्रांजिस्टर विल बी ऑफ। इंटरनल ट्रांजिस्टर ऑफ है तो क्या होगा? वो पिन 7 जो है वो डिस्चार्ज ओपन सर्किट हो जाएगा। पिन 7 अगर ओपन हो जाएगा तो इसको चार्जिंग का पाथ मिलेगा। सो अगेन इट विल स्टार्ट चार्जिंग एंड इट अल्टरनेटली चार्ज एंड डिस्चार्ज बिटवीन 1/3 of VCC and 2/3 of VCC, and thereby we'll get a high output and a low output, high output and a low output. I hope you understood this one. Yes, sir. मैं आपको अच्छा वाला डायग्राम एक आधा बता देता हूँ थोड़ा सा। हाँ, ये डायग्राम मैं बनाता हूँ, आपको शायद ये थोड़ा समझ में आया। तो यहाँ पे वैल्यू लेकर है, आप वैल्यूज की तरफ मत ध्यान दो। व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग दैट कैपेसिटर वोल्टेज चार्जेस एंड डिस्चार्जेस बिटवीन 1/3 of VCC, 2/3 of VCC. Okay, so when it goes above 2/3 of VCC, it resets and the output becomes low. When it goes below 1/3 of VCC, it sets and the output becomes high. So alternately, it charges and discharges between 1/3 and 2/3 of VCC. So if you observe the capacitor voltage in a CRO, your 0 will be somewhat here. यहाँ पे 0 रहता है और ये 1/3 VCC रहता है और ये 2/3 of VCC रहता है। मतलब अगर VCC इक्वल टू आपने 6 वोल्ट यूज किया तो ये 2 वोल्ट रहता है, ये 4 वोल्ट रहता है, और ये तो 0 और VCC यानी 6 वोल्ट और 0 वोल्ट इस तरीके से चलते रहता है। ठीक है, सो यू कम टू नो दैट अ चार्जिंग पाथ इज थ्रू RA, RB and C, whereas discharging path is through RB and capacitor only. अब इसमें से हम लोग इसका नेक्स्ट टाइम देखेंगे, आज का दिन ज्यादा होगा टाइम, इसका डेरिवेशन निकालेंगे कि इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस कैसे होता है, या यू कह लो कि इसने जो भी डिराइव अब इसके वैल्यूज के हिसाब से डिराइव किया, हम लोग अलग तरीके से देखेंगे कि हाउ द वैल्यूज और वी कैन से फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस कम्स टू बी 1.44 RA प्लस 2RB। ये कैसे आता है ये हम लोग पढ़ेंगे, ये फार्मूला हम डिराइव करेंगे। आई एम क्लोजिंग द रिकॉर्डिंग।